Today we're gonna talk about frame control and how does it work. So frame control and first of all the power perspective from a power perspective जो power में रहना चाहता है उसे frame control अपना खुद का maintain करना ही पड़ेगा. So how we're going to maintain our frame control and control the frame. Frame lead. Frame lead, the one who has very much special power, the one who is leading the relationship or leading the conversation. कोई एक बंदा जो ज़्यादा टॉपिक्स, ज़्यादा सिचुएशंस, घूमने जाने के प्लान्स और जो भी है ऐसी चीज़ें बना रहा है, he or she is controlling the frame. For frame controlling more better, तुम्हें क्या करना है? You have to go out, talk to more people, hang out with more people, have more conversations. ऊपर से नीचे तक हर किसी चीज़ में mirror more without getting caught. And while you're doing all of these things, कि तुम बाहर जाके दोस्तों के साथ या फिर दोस्त ज़्यादा बना रहे हो and you are being a little bit more extrovert और तुम introverted हो, मुझे बाहर जाके अच्छा एनर्जी पुट आउट करना है, पॉजिटिव एनर्जी पुट आउट करना है जो दूसरों को पसंद आ रहा है. ऐसा नहीं कि I'm just being mad and sad. I'm just being happy. I'm just being happy and I'm appreciating life. I'm doing something in my life and I'm appreciating somebody else, appreciating their side of the life too. This is how frame control really works. So frame control is joyful. Frame control is not sad, not disalarming, not going to make you कि हाँ भाई इस सामने का बंदा मुझे बहुत सैड कर रहा है तो इसका मतलब वो मुझे फ्रेम कंट्रोल कर रहा है. ऐसा कुछ है नहीं. If you really want to see who is controlling the frame and who is not, just notice who is being or acting like the boss, who is being the boss and who is putting the common efforts in the relationship that you are trying to put. तो हम बात करेंगे frame flipping के reversals के बारे में and some techniques. तो if some girl shows up and tells अरे यार तुझसे क्या ही होगा, in these type of questions or in these types of self respect violation जो वो करने की कोशिश कर रही है, इसमें you as a person would try to reply like very smoothly and you don't need to explain what you want to do in life. You don't need to explain what is your purpose. You don't need to explain how much money you make. अगर ऐसा पूछे कि कितना कमाता है तू, what kind of car, what कैसा बाइक है तेरे पास और ये सारी चीज़ें, you don't need to explain how good it is. Just ऐसा बात ऐसे रिप्लाई दो कि you are making fun of it कि I have a मेरे पास तो एक लूना है और मैं उस पर अंडे लाता हूँ रोज़ अपने जिम के लिए. इफ़ यू रियली इनटू लाइक माई थिंग और कोई कुछ और करता है तो वैसे ही अंडे लाता हूँ जिम के लिए would really reveal a lot. Don't also reveal a lot. This is also a part of frame control. ज़्यादा रिवील करोगे तो ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, you will get caught up more. Don't tend to get caught up more with and around them because if you get caught up more और ज़्यादा मतलब तुम्हारा अगर तुम्हारा खुद का मिस्टीरियस जो फैक्ट है तुम्हारे अंदर वो चला जाए पूरी तरह से, सो योर अट्रैक्शन विल गो लेसर एंड लेसर. सो वी हैव टू मेंटेन दैट पुटिंग लाइट इनटू डार्कनेस. ठीक है, तुम्हारा जो फ्रेम कंट्रोल करने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी की बुराई में या फिर किसी के लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, कुछ हर्टफुल हो रहा है एंड यू आर एडजस्टिंग टू इट, यू आर helping them out, you are compromising for them. This is gonna be like that. And even if you are not doing it 100%, show that you are doing it. दिखाओ दूसरों को कि तुम ऐसा सोच रहे हो या फिर करना चाह रहे हो किसी और के लिए. This is a part of frame control. There's very less people understand. You need to act as a very good person sometimes just to get everything out and in the right place. Another part of this type of frame control is जो मेल की तरफ से है, जो लड़कों के साथ तुम करोगे, जो लौंडों के बीच में तुम्हें करना है. अगर कोई लौंडा आके तुमसे पहली बार मिल रहा है, हाथ पकड़ने से हाथ मिलाने के टाइम पे टाइट से पकड़ रहा है, उसे ये बोलो कॉल हिम आउट ऑन दिस लाइक ओ भाई तू इतना अल्फा बनने की कोशिश कर रहा है भाई, और तू बॉसी बन रहा है भाई, वो तू हीरो बन रहा है भाई, इतना स्ट्रेंथ दिखा रहा है. या फिर कोई लड़का पकड़ लो तुमसे बात कर रहा है, बातें करते हुए ही इज गार्डिंग यू व्हेन यू आर इन अ सर्कल, इज गार्डिंग यू, इज गार्डिंग यू. तो उसे क्या कॉल हिम आउट ऑन दिस लाइक भाई थोड़ा जगह दे, अपना ही सब ले लेगा क्या, थोड़ा हटो यार, अपने लिए ही सब ले लोगे क्या, थोड़ा हट बे, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे. टॉक इन अ सर्टेन वे जो उन्हें कभी भी बुरा ना लगे, और उन्हें अगर बुरा भी लग रहा है स्माइल रो यार फिर
या फिर आई डोंट नो ब्रो, माय स्माइल लुक्स वियर्ड एज फक, योर स्माइल माइट लुक गुड, माय स्माइल लुक इविल, लुक एट मी। Mad, bro. In a frame control situation, there are two emotions to target. Two emotions to target: fear and love. So, love mostly works on women, fear mostly works on men, but both of them go congruently. कभी कभी तुम्हें ऐसा दिखेगा कि लॉन्डो के बीच में यू आर गेटिंग मोर हेल्प विद लव। कभी कभी तुम्हें ऐसा दिखेगा कि लड़कियों के बीच में यू आर गेटिंग मोर हेल्प विद लव। तो तुमसे जल रहा है, वो भी तुमसे डर रहा है, सो you gotta do what you gotta do. In a frame control situation, reversals are very necessary. जब तुम्हें किसी ऐसे लौंडे का सामना करना पड़ा है where he is trying to push it on you and you're trying to back off and protect yourself. और in a very spiritual level पे भी when you're kind to someone कि kill them with your kindness, ऐसा बोलते हैं ना लोग, और you might have heard that, some people have heard that कि kill them with your kindness। तो जब तुम ऐसा करते हो कि यू आर सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम somebody's hate, killing their hate within themselves about you with kindness, and you are not acting like in a bad नेगेटिव वे, और उन लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि मैं ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा हूँ, ये बहुत बुरा है। अगर कोई सच में बहुत ईवल है, दिस वन ऑल्सो डजंट वर्क। उसके बारे में कोई बंदा टाइट शर्ट बन के आ गया, तुम्हारे साथ बकचोदी कर रहा है, तुम्हारे साथ गान मस्ती कर रहा है, ओके, कोई बंदा वो सब होता है ना, इंडियंस, कुछ इंडियन लौंडे होते हैं थोड़े मोटे, स्पाइकी कड़ा पहन लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं। तो उन लोगों को भी, सो कोई ऐसा आ गया तुमसे, फक दे ट्राइंग टू फक विथ यू और समथिंग, ओके, तो एट दैट सिचुएशन, ओके, तुम्हें ऐसा ही एक्ट करना है, हंसते खेलते हुए कि अरे भाई क्या मस्त लग रहा है, हाथ का कड़ा किसी को लग जाएगा भाई, देख के चलाना हाथ अपना, ये वो कि, या फिर भाई ये सब क्या पहन रहा है, मेरे को तो देख के ही डर लग रहा है भाई, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं भाग जाऊंगा। act like this and be happy, smiling, joyful, talk to them। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अगर उसके टोन भी काट रहा हूँ ना उसे, तो आई एम डूइंग दिस विद काइंडनेस। और कुछ लौंडे होता है ना कि सम मैन लाइक चढ़ने लगते हैं कि तुमको घूर रहे हैं, या फिर तुम्हें कुछ बोलना चाहे, फिर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं घूर घूर के एंड एवरीथिंग। जस्ट रिप्लाई की, क्या भाई प्यार करने लगा है मेरे से, क्या भाई डर लग रहा है मुझे, तो अब मत देख ऐसे मुझे, अरे यार चूम लेगा क्या, मुंह में आ रहा है चूम लेगा, ये सारी चीजें तुम करोगे थोड़ा बहुत हंसते हुए खेलते हुए कि उन्हें बुरा कम लगे। तुम अगर चाहो तो किसी को बुरा फील करवा सकते हो, बट द थिंग इज, हम नहीं चाहते कि किसी को बुरा फील हो, क्योंकि after a certain time or a certain point in our life, while we work hard, we grow up to be at a certain place में हम 5 साल पहले यहाँ पे थे, 5 साल बाद हम यहाँ पे हैं। So we worked our ass out to go out from that place to this place। और अभी जो सिचुएशन है दुनिया में, we don't want to mess up, और हमें नहीं चाहिए कि हम बवाल करें, झमेले में फंसे। So don't ever do this type of situations, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ, it is like a bar situation or a like a गेट टुगेदर सिचुएशन और अ पार्टी मीटिंग और अ क्लब सिचुएशन, जहाँ पे तुम बात करने की कोशिश में रहोगे एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्सेट और यू आर ट्राइंग टू कन्वर्सेट विद अदर पीपल, गेटिंग टू नो न्यू पीपल एंड एवरीथिंग, और इसके बीच में someone is trying to really ruin the mood, leave them alone. Don't even try to talk to them, because you don't want any kind of negativity around you, and it's really going to ruin the mood। उस दिन का तुम्हारा मूड भी खराब हो जाएगा, और कुछ अगर बुरा हुआ या फिर तुमको मारपीट ये वो करना पड़ा, फिर भी तुम्हारा मूड नेगेटिव वे में खराब होगा ही। इवन इफ यू आर विनिंग इन अ वेरी विनिंग विनिंग सिचुएशन, स्टिल थोड़ा बहुत तुम्हारा मूड चिड़चिड़ा होगा ही। सो वाई जस्ट गो इन टू इट, ट्राई टू अवॉइड इट, ट्राई टू बी काइंड, स्माइलिंग, लाफिंग, किलिंग somebody with their kindness, with your kindness is so much better than trying to harm someone in a like a हार्मिंग काइंड ऑफ वे। क्योंकि अगर तुम किसी को हंसते खेलते हुए थोड़ा बहुत चांट दे रहे हो या फिर थोड़ा बहुत उनकी ले पा रहे हो, तो वाई नॉट। किसी को एग्रेसिवली कुछ बोलना भी इज नॉट रियली अ गुड मॉरल ऑडेसिटी ऑफ योर्स। आई मीन लाइक किसी को कुछ चीज़
किसी को बुरा फील करा के कुछ बोलना भी बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे अपने लिए, खुद के लिए। और हमारे हमें मतलब दूसरों के पास अगर देख लो तुम किसी लड़की के पास कूल बनने की कोशिश कर रहे हो अपना गुस्सा और ये वो दिखा के, शी इज़ नॉट रियली गोइंग टू अप्रिशिएट दैट अंटिल शी इज़ अ मैड मैन, मैड वुमन। क्योंकि देखो, गर्ल्स ऑल्सो लाइक कि कोई कंपोज्ड होगा, कोई अपने आप को पकड़ पाएगा, कोई इन कंट्रोल रह पाता है अपने इमोशंस में। दे ऑल्सो वांट दिस, दे डोंट वांट कि कोई ऐसा होगा भाई पूरा दिमाग खराब करके चला जाएगा मेरा चीख के चिल्ला के। दे डोंट वांट दिस। फिर बात करेंगे हाउ यू आर गोइंग टू बी अ गो गिवर। गो गिवर का मतलब ये है कि एज अ मैन तुम जब यहाँ पे आए हो, तुम्हें पहले बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें पहला पिक्चर पोस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा पोस्ट करना पड़ेगा फॉलोअर्स के लिए, तुम्हें ज़्यादा समझाना पड़ेगा किसी को प्यार के लिए, तुम्हें ज़्यादा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, गिफ्ट्स ये वो देने पड़ेंगे प्यार के लिए, पैसों के लिए तुम्हें ज़्यादा बॉस के पास झुकना पड़ेगा। एज अ मैन यू हैव टू डू मोर एज इंस्टेंट ऑफ सम अदर जेंडर्स लाइक गर्ल। और लड़कियां ये भी नोटिस करती हैं कि यू आर बीइंग काइंड एंड यू आर नॉट बीइंग पुशी, यू आर नॉट बीइंग एग्रेसिव, यू आर बीइंग काइंड एंड यू आर बीइंग रेस्पेक्टफुल। और फिर भी तुम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी संभाल के रख रहे हो जब यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स विदाउट गेटिंग एग्रेसिव इन अ सर्टेन वे और इन अ वेरी बैड वे। क्योंकि एग्रेसिव हो जाना ही बेसिक ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म है। ऐसे सिचुएशंस में मोस्ट ऑफ द मेन डू द सेम थिंग, गेट aggressive because someone else is getting aggressive. I'm not going to put out the same negative energy, I'm going to put out the positive energy because everybody is trying to have a good time at this place. सबको अभी अच्छा टाइम चाहिए भाई, किसी को भी बुरा अभी झमेला नहीं है। तो why am I going to be the person like the other guy who is trying to do the same shit? If you're trying to get into some girls, okay, get into talking to them, knowing them, उनसे तुम बातें करना चाह रहे हो और उनसे तुम मिलना चाह रहे हो, तो डोंट इवन एवर जस्ट एवर टेन टू बी एग्रेसिव अराउंड देम और एग्रेसिवली कुछ रिएक्ट करो या फिर एग्रेसिवली तुम उनसे बात भी करो बिकॉज दे आर रियली अफ्रेड ऑफ दैट एंड यू शुड बी अ गुड मैन एंड इफ यू डू दैट दे आर गोइंग टू गेट अनअट्रैक्टेड। सिंपली एंग्री होना बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा। कंट्रोल योर इमोशंस, कंटेन योर इमोशंस। सैवेज कमबैक, एक सैवेज कमबैक ऐसा है तो अगर तुम बात करने की कोशिश कर रहे हो, समवन इज अ स्ट्रेंजर, समवन इज अ स्ट्रेंजर, तो फिर देन दे टॉक, अरे यार जा यहाँ से, मुझे नहीं बात करना। तुम लोग ये क्या, तो वो फिर से बोलना चाहेगी, क्या बोला आपने, फिर से बोलना चाहेगी। द मोमेंट शी ट्राइज टू से इट बैक टू यू, आह ठीक है यार मैं नहीं बात करना, आह आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा करके भाग जाओ। द मोमेंट यू से दिस शी इज ट्राइंग टू कम बैक टू यू। द मोमेंट यू से दिस इज अ सैवेज रिप्लाई एंड दिस वर्क्स। ये काम करता है, ये बहुत ही ईजी है करना भी। तो और एक बात, तुम बात कर रहे हो, फिर एक लड़की ने तुम्हें बोला अरे यार जाना, या फिर अरे यार ये कुछ भी बोला तुम्हारे बारे में, नेगेटिव एनर्जी या फिर कुछ भी, और तुम्हें बोला हमें तुमसे नहीं बात करना या फिर निकलो यहाँ से या फिर कुछ भी ऐसा। जस्ट से दैट, अरे यार मुझे भी क्या बात करना था तुमसे, तुम्हारे मुंह से बात आ रही, कैसे निकलूँ मैं यहाँ से। आई वाज जस्ट थिंकिंग कैसे निकलूँ मैं यहाँ से, क्या बदबू आ रहा था तुम लोगों के पास से, लाइक दिस। Another thing is, don't respond to anything until you get a nice response back. तो बात यह है कि if you're trying to talk to someone and somebody is not responding to you, जो तुम्हें अच्छा रहेगा या फिर जिसको तुम अच्छे से रिप्लाई दे पाओगे और पॉजिटिव वे में कन्वर्सेशन जाएगा, ट्राई टू मिस इंटरप्रेट, ट्राई टू से दैट, ऐसा फील करवाओ या फिर ऐसा बोलो जो वो बोल रहे हैं उसको गलत सुन के कुछ और बोलो। क्या तुमने ये बोला है, फिर क्या, क्या अगर किसी ने बोला कि मसल ब्लेस बायोजम शेड फैट लॉस करता है, फैट लॉस करता है मसल ब्लेस, ऐसे पूछो, यू कैन गेट व्हाट आई एम सेइंग। और या फिर बायोजाइम से फैट लॉस होता है, ये क्या है, नया ब्रांड है क्या, और समथिंग लाइक दिस। बिकॉज व्हेन दे आर ट्राइंग टू से समथिंग नेगेटिव कि मसल ब्लेस नहीं करता है फैट लॉस, तुम ऐसे अगर बात करोगे, दे आर गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसकी वजह से वो लोग सही से डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या बोलना है और सोचने का टाइम लेंगे। द मोमेंट दे थिंक एंड द मोमेंट दे आर टेकिंग द टाइम टू थिंक, तभी जाके तुम्हें बोलना है कुछ और। तो अगर तुम कुछ और टॉपिक बोल रहे हो जो इम्पोर्टेंट है उस टाइम पे भी, दे गोइंग टू मेस अप इन द हेड, और जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे थे या फिर जो इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में कलेक्ट होने वाला था वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा और गलत कलेक्ट होगा या फिर गलत निकल के भी आएगा सम हाउ समटाइम्स। और ये करने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब उनके साथ
बातों का झोल खेलना पड़ेगा बेसिकली, दैट्स व्हाट द हिंदी पीपल से। कोई सवाल या फिर कोई बवाल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड रिप्लाई, गेटिंग अ पॉजिटिव रिप्लाई, तो छोड़ दो भाई, इग्नोर इट, डोंट इवन मतलब प्रिवेंट इट टू बी प्रोग्रेस। बात ही मत करो, बात ही मत करो, छोड़ दो, डोंट इवन टॉक अबाउट इट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू, अगर वो वैल्यू नहीं है, अच्छा खासा तुम्हें वैल्यू नहीं प्रोवाइड करने वाला है, इट इज नॉट पॉजिटिव, डोंट इवन टॉक अबाउट इट। और यू आर द स्टार ऑफ द शो, व्हाई शुड यू बी obliged to reply and respond to anything that somebody else is saying? तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, तू तो शाना है, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्यों ही बात करना है किसी से, तू तो शाना है भाई। तो लास्ट में यही बोलूंगा कि कितने लोग मिलेंगे कुत्ते जैसे भौंकने को, सबको रिप्लाई देने लगेगा तो खुद भी कुत्ता बन के रह जाएगा। वेरी कॉमन सेंस। तो रिफ्यूज टू एंगेज, in the end, if you refuse to engage, you're ignoring and you're preventing a lot of problems that are just randomly coming into your life. Refuse to engage, bro.